یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا میں مجاہدہ کر رہا تھا، ریاضت کر رہا تھا تو اللہ کا قرب پانے کے لیے. تو آپ فرماتے ہیں ایک دن نا مجھے پیاس لگی، اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شمار ان بزرگوں میں ہے کہ جو اپنے نفس پہ بڑے سخت تھے. آپ فرماتے ہیں کہ پیاس لگی تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں، پانی چڑھنی ہے، صبر کرنا ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ پیاس نے اتنی شدت اختیار کی کہ میں عاجز ہو گیا، نڈھال ہو گیا. میں نے کہا نہیں فرید، پانی تو پینا ہی پڑے گا. تو پانی نہیں تھا. تو آپ فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نا آبادی کی جانب آیا. کہتے ہیں ایک کنواں نظر آیا. اب کنویں کے اوپر چرخی نہیں لگی تھی، رسی بھی نہیں تھا، ڈول بھی نہیں تھا، رسی بھی نہیں تھی، ڈول بھی نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے، اسی لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. خیر آپ فرماتے ہیں میں آیا اور میں نے آ کے نا وہ کنویں میں جھانکا، لیکن کنواں خشک نہیں تھا، کنویں میں پانی تھا لیکن پانی کھینچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اب حضرت ہم تو ایویں رونا شروع کر دیتے ہیں نا. وہ بڑے یقین والے لوگ تھے. کہتے میں نے کہا اچھا یار جو یہاں تک لے کے آیا آگے بھی بندوبست کرے گا. آپ فرماتے ہیں میں کنویں کے پاس بیٹھ گیا، ذکر الہی کرنے لگ پڑا. فرماتے کیا دیکھا، یکا یک جنگلی ارنوں کا ایک جوڑا آیا کنویں پہ. کہتے جیسے میں نے آ کے جھانکا تھا نا تو میرے جھانکنے سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ فرماتے جب انہوں نے جھانکا نا کنویں میں تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا. کہ میں بڑا حیران ہوں، اللہ ہے بھائی میں آیا تو پانی اتے نہیں آیا، ارن آئے نے تو پانی اتے آ گیا. تو شیطان تو حضرت پہلے اس طاق میں ہوتا ہے نا کوئی معاملہ بنے تو میں بندے کے دل میں وسوسے ڈالوں. اب شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دی. لے بھی چنگی گل ہے، 4 قسمیں کھا رہے ہیں اللہ، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ بندے تجھے سونا بنایا، چنگا سونا بنایا تجھے، تو پانی نہیں آیا تیرے لیے. اور اوپر سے مرید چشتیوں کا قطب صاحب شیخ ہیں، حضرت سلطان الہند دادا شیخ ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پردادا شیخ ہیں، پانی نہیں آیا. آپ فرماتے خیر میں نے اس کے وسوسوں کو ہٹایا. ہرنوں نے پانی پیا، پانی پی کے چلے گئے. اب آپ فرماتے پانی اوپر ہی تھا. تو میں نے کہا چل فرید پانی آیا نہیں، پانی ہے تو ہی ہے نا، چل تم ہی پی لے چل کے. آپ فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا. کہتے میری حیرانگی معجزہ بھائی، پہلی بات میں آیا تو پانی نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی آ گیا. اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب حضرت عام تو نہیں تھے نا، وہ تو خاص لوگ تھے. کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا. اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر جواب کیا آیا، فرید تو رسی تے ڈول دے آسرے تے آیا سا. تو رسی تے ڈول تو آیا تھا جاؤں گا، رسی ہوگی ڈول ہوگا، پانی کھینچوں گا پیوں گا. تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا، وہ ہرن ہمارے آسرے پہ آئے تھے. اور فرید جس دن تو بھی ہمارے آسرے پر آئے گا ہم تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجیں گے. بات تو ساری یقین کی ہے، بات تو ساری آسرے کی ہے، بات تو ساری یقین کی ہے. آج ہمارا یقین بڑا کمزور ہے، آج ہمارا یقین بڑا کمزور ہے. اس لیے اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری شاعری میں بار بار یہی بات دہرائی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی. اور آج حضرت ہمارا سب سے بڑا مرض یہ ہے بے یقینی. کتوں ہوئے گا، کنج ہوئے گا، کیوں ہوئے گا، پھر کی ہوئے گا، پھر کی ہوئے گا. اور بھائی وہی ہوگا جو اس کی مرضی ہے، وہی ہوگا جو اس کی مرضی ہے. تو بس یقین رکھ اپنے اللہ پہ، پھر دیکھ تو صحیح کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھیں تو اس میں ایک بڑا خوبصورت سا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اب مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور امام حسن بصری مرید ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت. اس حوالے سے آپ حضرت امام حسن بصری کے مرید ہوئے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
पोते मुरीद हुए, ठीक है जी, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम। और मैं जैसे कहता हूँ ना, ये आज हमें ये जो बेयकीनी की कैफियत पाई जाती है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम पढ़ते नहीं अपने बड़ों को, हम अपने बड़ों को पढ़ते नहीं हैं। ये इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए लिखा है कि हज़रत वाज़ फरमा रहे थे और आप लोगों को क्या कह रहे थे, आप कह रहे थे ओ भाई अल्लाह के दरे रहमत पे दस्तक देते रहा करो, एक वक्त आएगा वो तुम्हारे लिए अपनी रहमत का दरवाज़ा खोल देगी। लिखा आप बयां कर रहे थे तो एक माई साहबा उठ खड़ी हुई, वो कहती हैं इमाम हसन बसरी आज तो आपने नई बात ही सुना दी। आप फरमाते मैंने कहा क्यों, मैंने क्या नई बात सुनाई? वो कहती हैं इमाम हसन बसरी आप कह रहे हैं तुम अल्लाह के दरे रहमत पे दस्तक देते रहो, एक वक्त आएगा वो तुम्हारे लिए अपना रहमत का दरवाज़ा खोल देगा। आपने फरमाया हाँ। तो आपने फरमाया ये बताओ उसने बंद कब किया है? ये बताओ उसने बंद कब किया, दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन बात फिर वही है, हम तो मायल बकरम है, कोई साइल मंगदा ही कोई नहीं। अब देखिए ना हजरत, बेगानों की तो मैं बात नहीं करता, जो हमारे नमाजी हैं वो बड़े काले हैं, दुआ ही नहीं करता कोई, दूसरी दुआ में तो वैसे ही कोई नहीं शरीक होता हजरत, भागते हैं सारे हजरत, भागते हैं। वो चले हुए थे मंगो अपने अल्लाह को और अगे अर्जी पाओ या अल्लाह साड़ी दौड़ कटा दे, या अल्लाह सानू आसान रिज़्क दे दे, नहीं है, बस भागना है भागना है भागना है और भागना है। तो ये हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़ा नाम है। फिर उनके बाद उनके मुरीद हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि तआला। तो तारीख लिखती है कि हबीब अजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक वक्त ऐसा भी था जब आप सूद का काम करते थे, और जैसे यहाँ कुछ अहबाब है ना कि जिनका काम ही उनका नाम बन जाता है, तो आपको भी जो है ना वो बच्चे पुकारा करते थे हबीब सूदिया कह के। तो फिर एक वक्त आया कि अल्लाह ने आपको तौबा की तौफीक दी और आपने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दस्ते मुबारक पे तौबा किया। तो मैंने कहा ना तब इस तरह नहीं था जिस तरह अब है, अब बस हूँ तो मुरीद हो गए हैं, हूँ जन्नत के दरवाजे तो मुलाकात हुई, या तेरा हाथ फड़ के ही ले जाना, पता नहीं पीरा ने आप ही भी जाना कि नहीं है। पहले इस तरह नहीं था, पहले अमल अमल। देखो ना मियाँ मोहम्मद बख्श साहब आरफ खड़ी शरीफ कितनी खूबसूरत बात कर रहे हैं हमारे लिए। आप क्या फरमाते हैं, काले वाल मुसाफिर हुए हैं, काले वाल मुसाफिर हुए, चिट्टियां डेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत स्नेह आए। फिर हजरत बाबा फरीद बोले, आप क्या फरमाते हैं, उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया बूर, उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया बूर, अगा आगे नेड़े पीछा रह गए दूर। तो हजरत ने भी यही तालीम दी। आपने फरमाया हबीब उम्र तो पहले बड़ी गुजर गई है, हाँ अब जो रह गई इसको जाया नहीं करना है, अब अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करना है, अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करना है। वो हजरत ने ना वो अपने पास से तस्बीह इनायत फरमाई और साथ आपने तालीम किया इसमें ज़ात अल्लाह। आपने फरमाया भी ऐ पकाना है। वो बंदा है ना जी, दिल में ख्याल आया घर किवें चलावांगा, तो मुर्शिद की बारगाह में अर्ज करते हैं हुजूर बीवी भी हैं बच्चे भी हैं, आप फरमा रहे हैं हूँ रब मनाना है, तो जो काम नहीं करांगा तो खाना पीना कितों। आपने फरमाया बीब अपनी बीवी का खालिक तू नहीं हुजूर, अपने बच्चों का खालिक तू नहीं हुजूर, अपने आप को खुद पैदा किया ही नहीं हुजूर, किन्ने किया है जनाब अल्लाह ने। आपने फरमाया जो खालिक है तो फिर राज़िक भी है, जा तू यकीन रख। भाई दो तरीके हैं ना, हम सारे वो हैं कि हमने असबाब को इख्तियार किए हैं, हजरत को हुक्म आया असबाब के तरक कर देने, और ये उनके लिए है, ऐ नहीं कि सिरे तू ही भी जाके बह जाना है। फिर बेनियाजी है जी भाई, भावें 3 साल ना पूछे भावें 4 साल ना पूछे, है बेनियाजी है हजरत। ये इसके लिए इतना बड़ा कलेजा चाहिए, ये हर बंदे का काम नहीं है। आपने जाके शुरू कर दिया, तस्बीह पकड़ ली और शुरू हो गए हजरत अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन। एक दिन बीवी आकर ना बड़े गुस्से में आपको कहती है हबीब ये क्या आप तस्बीह लेके बैठे रहते हैं, और हमसे नहीं ये सूखी मांगी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके को काम करो, को दिहाड़ी लगाओ, को पैसे कमा के लाओ, हम भी को तरन वाला खाएं। दाना आदमी थे, बहस नहीं की, तस्बीह मुसल्ला लोटा कुरान पाक लिया, जंगल चले गए। सूफी तो पहले दुआ करते हैं ना, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो।
सारा दिन वहां बैठ के ना अल्लाह अल्लाह की। रात पड़ी तो घर आ गए। जब घर आए ना तो घर में दाखिल होते बीवी ने पहला सवाल ये किया, पूछती हैं बीब मजदूरी की ना, दिहाड़ी लगाई ना, काम किया ना? आपने फरमाया हाँ किया। तो बीवी पूछती है फिर दिहाड़ी कितने? आप फरमाते मैंने टाला। मैंने कहा नहीं, वो सारा ही मांग रहे थे, लेकिन मैंने जिसका काम किया ना वो मालिक बड़ा करीम है, मुझे दिहाड़ी मांगते हुए शर्म आ गई। हजरत जी सच बताना, सब ने है करीम के नहीं? हजरत जी करीम है तो टुरन फिरन दे दिया, करीम है तो टुरन। एक गुना जे माँ प्यो देखे देवे देश निकाला, लख गुना पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला। ये ना कोई समझना कि उसको पता ही नहीं हम रात को मोबाइलों पे क्या करते हैं, सारा ही पता है उसको। लेकिन क्या है वो करीम है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो गफूर है, वो गफ्फार है। भाई हमारी तो सगी बहन हमारे मिजाज के खिलाफ कुछ करे ना तो हम उसे कहते हैं चल बीबी वो तेरा कार दे साडा कार। लेकिन जरा हमें देखो कई साल गुजर गए, हमें नमाज हम नहीं पढ़ते, झूठ हम बोलते हैं, काम हम तोलते हैं, अखलाक हमारा बुरा है। लेकिन हजरत जी सारा कुछ ही होंडे है। चादर भी दे दी, भाई ना दे तो क्या जोर है उस पर? है कोट ना दे तो उस पर जोर है कोई? घड़ी ना दे तो कोई जोर है उस पर? नहीं है। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं? तो बीवी कहती है अच्छा चलो फिर कल लाएगी हो जाके। आप फरमाते अगले दिन फिर गया, सारा दिन उसी तरह अल्लाह 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 अल्लाह। रात पड़ी तो घर आ गए। बीवी फिर पूछती है हबीब दिहाड़ी लाई है ना, काम करके आए हो ना? आपने फरमाया हाँ कल से भी ज्यादा किया है। तो पूछती है अगर किया तो फिर पैसे किधर है? आप फरमाते मैंने टाला। नहीं सारे ही मांग रहे थे, लेकिन मेरा मालिक करीम बड़ा है, बड़ा करीम है मेरा मालिक। सब मांग रहे थे, अब मुझे मांगते हुए शर्म आ गई, मैंने नहीं मांगे। तो बीबी साहब थोड़ा गुस्से में आके कहती बीब अब जब कल जाएंगे ना तो जाके काम ना शुरू कर देना, पहले जो 2 दिन काम किया ना उसके पैसे लेना उससे। तो अगर तो दे तो फिर उसका काम करना ना दे, इनकारी हो जाए तो फिर किसी और का करना जाके। अब हजरत को सूफी समझेगा कि ये तीर किस तरह इधर आके लगता है हजरत सीधा। हम तो अल्लाह मुआफ फरमाए वो है ना, हम तो 5 रुपए के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ देते हैं हजरत। ये वही थे जिन्होंने इस बात पे पहरा दिया, सोने मिलन नजारा आसान नहीं यार बटाना। उन्होंने नहीं बटाया हजरत जी कोई, हम तो 5 रुपए के लिए झूठ बोल देते हैं। उन्होंने नहीं बटाया कोई, उन्होंने नहीं बटाया। तो आप फरमाते हैं मैं सारी रात अपनी चारपाई पे लेटा रोता रहा। उसने बात क्या कर दी है? कहाँ जाऊं छोड़ के उसका दर? है कोई ऐसा 70 माह से बढ़ के प्यार करने वाला है? वो आप फरमाते खैर तीसरा दिन आया तो मैं फिर चला गया। सारा दिन फिर उसी तरह अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सारा उसी तरह। आप फरमाते जब रात पड़ी ना घर आने लगा तो बड़ा परेशान। ओ हबीब वो आज उन्होंने की बहाना लाना है, आज उसको क्या कहना आगे, पता नहीं वो आगे से क्या बोलेगी, कुछ ऐसा ही ना कह दे जो मुझसे सुना ही ना जाए। अब फरमाते मैंने कहा चलो बाहर ही बैठ जाओ, उस वक्त जाऊंगा जब सो गई होगी, कल टपांगा काट और जाऊंगा, रात तो गुजारो ना, कल की फिर कल देखेंगे। अब फरमाते मैं बाहर ही बैठ गया और फिर तस्बीह पकड़ ली और फिर शुरू कर दिया मैंने अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वैसे दरी कभी तू ही भी करो ना तो बड़ा ही मजा है। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। फरमाते मैं बैठा रहा, जब आधी रात हुई ना तो मैं घर आया कि अब चलो सो गई होगी। आप फरमाते जब घर आया तो घर का मंजर ही बदला हुआ है। क्या देखता हूँ जनाब,
धुआं उठ रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, भाई आधी रात को मेरे घर चूल्हा कैसे जल गया। फिर दिल में ख्याल आया शायद गांव में से किसी को तरस आया होगा, कोई दे गया होगा कुछ, तो उसने रख लिया। आप फरमाते मैंने जाके ना दरवाज़ा खटखटाया। अब तो दीवार फलांग के जाने वाली बात ही कोई नहीं थी। कहते मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने दरवाज़ा खोला। तो आप फरमाते क्या देखता हूँ, बड़ी खुश है और कपड़े भी बिल्कुल नए पहने हुए हैं। कहते मैं हैरान हुआ ये इतनी खुश क्यों है, या कि मुझसे लड़ी क्यों नहीं, और इसने नए कपड़े कहाँ से लिए। फरमाते सवाल मैंने खुद से किया तो जवाब वो देती है। क्या कहती है, ओ हबीब वो तुसी किदा काम कर दे रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ मालिक तो वाकई बड़ा करीम है। वो आप किसका काम करते रहे, आपका मालिक तो वाकई बड़ा करीम है। आप फरमाते मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ। अब कहते मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे अंदर ले गई। आप फरमाते अंदर जाके देखा कि जिस जिस चीज की जरूरत थी सबका ही ढेर लगा है, जो जो नहीं था ना घर में सबका ही ढेर लगा है। कहती है आप तो काम कर रहे थे ना, आज आपने ओवर टाइम भी लगाया, आप काम कर रहे थे, आपका मालिक इतना करीम है, उसने आपको तंग नहीं किया, बल्कि ये सारा कुछ उसने अपने बंदों के हाथ भेजा है। आप फरमाते मैं रो पड़ा और कुर्बान जाऊं हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते। आप फरमाते मुझे उसने रोता देखकर कहा हबीब रोए ना, घबराए ना, आप सामान के खत्म हो जाने से डरे ना, हाली सामान ही नहीं आया, आपके लिए पैगाम भी आया साथ। आप फरमाते मैंने पूछा क्यों, पैगाम क्या आया है। तो कहती है पैगाम ये आया है हबीब तू काम में कमी ना आने देना, मजदूरी में नहीं आने देंगे। चले वो कर लो यार, कर लो, चले वो कर लो। क्यों क्यों ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਇਧਰ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜਨ ਆਣਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜਨ ਆਣਾ ਮੱਥਾ ਹੀ ਇਧਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਣੀ ਜੇ ਤैयारी ला लो। ये मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, कुर्बान जाऊँ, हजरत हमारे बड़ों ने हमें बड़ा कुछ दिया, बहुत कुछ दिया यार। हमें अरबी नहीं आती थी, उन्होंने कुरानो हदीस का तर्जमा आला हजरत ने जनाब उर्दू में कर दिया, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने जनाब पंजाबी में कर दिया, बड़ा कुछ लिखा हमारे लिए उन लोगों ने। लेकिन हजरत हमने नहीं कदर की कोई भी। या मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के अशार हैं, बाप पुत्र का के थोड़ा जिहा टाइम, बस थोड़ा जिहा पुत्र टाइम, ठीक है जी, मैं बस उन्हें पता थक गई। वो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो है ना, माशाअल्लाह, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये अशार तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं बस ये मुख्तसर सा करके ना तो थोड़ा जिहा टाइम ठीक है, तो मैं इसको बयान करके मैं इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। वालेकुम सलाम, किबला ठीक हो जनाब। तो ये मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह खड़ी शरीफ में बैठे जो है ना, जहाँ जिक्र इलाही करते थे। असल में ये बड़े पाक लोग हैं, ये कोई बहाना बना लेते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे होते, वो कुछ और ही कर रहे होते हैं। ये मियाँ मोहम्मद साहब का अपना एक शेर है जिसमें खुद कहते हैं याने वेखे खे उड़ांदे ते जीवन वेख्या मरदा, मोहम्मद जिया उल्लू, मोहम्मद जिया गावां चारे ते उल्लू मौजां करदा। मियाँ साहब डंगर शंगर चारदे हुंदे सन ते वो बहाना सी हज़रत जी लोकां कोलों ओला करन दा, क्योंकि बुल्ले शाह साहब ने अपने दर्द का इजहार किया भी ना, और फरमाते चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना को साड़ी जात पछाणे ना को सानू मन्ने। लेकिन जाया नहीं जाता जी ड्यूटी पिछू साइयां ने लाई होए ਉਹਦੇ ਤੇ पैरा देना पैंदा भाई जी, अपनी मर्जी हुंदी कोई नहीं है, ते दिल करदा सारियां दा कि टुर चलीए किथे हजरत जी, चल बुलिया उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने, ना को साड़ी जात पछाणे ना को सानू मन्ने, लेकिन जाया नहीं जाता हजरत जी। तो मियाँ साहब का भी जी चाहता था, तो फिर क्या होता है ये बहाना बना लेते हैं। तो मियाँ साहब बैठे थे, तो मियाँ साहब जिस दरख्त के नीचे बैठे थे ना, उसके साथ एक और दरख्त था जिसके ऊपर फाख्ता ने कुगी ने अंडे दे रखे थे। तो ये सिर्फ दो ही हैं, एक इंसान और एक जिन, जिनको आज़ादी दी गई, भावें जिक्र करो भावें ना करो,
करोगे तो अजर पाओगे, नहीं करोगे तो फिर सदा है। बाकी हजरत जी सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल, हर चीज़ अल्लाह का जिक्र बयान कर दी। हर वक्री गल है साढ़े एक कान नहीं सुनना जी, साढ़े एक अखा नहीं वेखना जी, बाकी हर शह अल्लाह का जिक्र कर। मियाँ साहब थले बह के लगे सन तो घुग्गी उत्ते अपने आंडियां ते बह के लगी सी, दोवें हजरत जी चंगे मसाए दोवें लगे सन। हुआ क्या, वो जो है ना एक शिकारी आ गया, और ये जो पाक लोग हैं ना हजरत जी अल्लाह के कामों में नहीं दखील होते। आपने नहीं शिकारी को मोड़िया छोड़िया, नहीं भाई रब की मर्जी है, उदा रिज़्क़ क्यों रहा अज उन्हें आपने नहीं मोड़िया कोई। घुग्गी भी अखां बंद कीतियां ने, वो दा आलम है। मियाँ साहब भी शिकारी आया, घुग्गी ते ध्यान पिया, तीर पिछू कढ़िया, कमान ते चाड़िया, घुग्गी दा निशाना लिया, खिंचिया तीर नूं। ऐस तो पहले कि छड़दा, अगर अल्लाह पाक किसी ने कुछ नहीं देंदे फिर अल्लाह पाक उन्होंने बड़ा कुछ देंदे नहीं। घुग्गी दी इस बेदार हुई, अंदरों खतरे की टल्ली वजी। घुग्गी ने अखां खोलियां, वेख्या सामने शिकारी है, उन्हें जनाब डारी भरी तो दरख्तों बाहर उड़। ये सारे की मियाँ साहब के अशार है। अब अशार सुनाऊँ बड़ा वक्त लग जाएगा, मैं सादा सादा उसका तर्जमा कर। ये सारे मियाँ साहब के अशार हैं। घुग्गी ने डारी भरी तो दरख्तों बाहर उड़ के थोड़ा जिहा उत्ते गई ना, तो उत्ते की वेख्या, उत्ते एक बाज भी पिया चक्कर कट्टे, तो नज़र उन्हें भी घुग्गी ते लाई है। किहड़े वेले घुग्गी निकले दरख्तों बाहर तो मैं फड़ा, क्योंकि ये बूता उत्ते नहीं गई, बाज ने भी चुम्मी मारी, घुग्गी ने भी चुम्मी मारी तो दरख्त दे विच आ बैठी। हुण मियाँ साहब बह के सारा कुछ देखते हैं। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, हज़रत सुलेमान ने कीड़ी की आवाज़ सुन के तबस्सुम फरमाया। तो फिर इत्थे मियाँ साहब की घुग्गी दी नहीं सुन सकते है, मियाँ साहब सुनते हैं फिर। हुण सारे अशेर ने, मैं पंजाबी तर्जमा करन डिया दादा। हुण मियाँ साहब सुनते हैं घुग्गी की अल्लाह पाक की बारगाह च अर्ज़ करदी है, या अल्लाह तैनूं वेख्या नहीं, तेरे वलियां कोलों सुन के ईमान ले आईयां, तो सुनिया तू जो चाहे कर सकना है। हुण अगों घुग्गी नूं की आवाज़ आंदी है, घुग्गी की चाहनी है साडे कोल। फिर घुग्गी, या अल्लाह दो मौतां च फसीयां, ना उडांगी शिकारी हथों मारी जावांगी, उडांगी बाज हथों मारी जावांगी, मैं चाहनी हाँ मैनूं बचा सकना है। फिर अगों घुग्गी नूं आवाज़ की आंदी है, घुग्गीए होया दो की ने, सारा जमाना मारन आ जाए, जे बचाना होए तो बचा लांगे। साड़ी मर्जी होनी चाहिए बचाने की, असी बचा लांगे। घुग्गी खलो गई जम के हजरत। शिकारी बड़ा हैरान होया, पहले उड़ गई सी तो हुण आ गई है, तो आ भी सामने बैठी है, इनू की होया है? उसको तो पता ही नहीं था ना, कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उन्हें तो पता ही नहीं है इन्हें पुकारिया किस जात नूं। हजरत जी घुग्गी खलो गई जम के, हजरत तीर पहले चढ़िया सी, उन्हें जनाब खिंचिया तीर, निशाना लिया घुग्गी का, अद्धा क छुड़ोया सी, सारा नहीं निकलिया जी, अद्धा क छुड़ो गया दा ही, अद्धा निकल गया, अद्धा कमान दे अंदर ही। होया कि हुक्मे लाई ना ला के सप ने शिकारी दे पैर ते डंग कढ़ मारिया। हुण सप ने डंग मारिया, पीड़ हुई, दर्द होने की वजह नाल जिहड़ा हत्थ इंज सी ना, वो दर्द हुई ना, तो हत्थ इंज हो गया, तीर उत्ते नूं हो गया। वो घुग्गी ते छडोण दे बजाय उत्ते छडोया जाके, तो सीधा बाज नूं वज्जा। वो तीर वजन नाल मर गया, वो सप लड़न नाल मर गया, दोवें गड़ब करके इकट्ठे डिगे थले। घुग्गी उत्थे खलोती, मियाँ साहब वेखदे ने पे सारा। हुण 10 शेर मैं छड़ छड़े जे, 11वां लगा जी हुण मैं पढ़न लगा। तो फिर मियाँ साहब हजरत जी सारा कुछ वेख के तो फिर लिखदे की ने, आ फरमांदे ने, घुग्गी रही अथां खलोती। तुहानूं बंदा मिलण आए ना, भाई जी कित्थे हो? जी मैं बाहर UBL दे बैंक के सामने, तुसीं कहना जी उत्थे ही रही, मैं आन लगा वां, या मैं बंदा भेजन लगा। उत्थों की निकलिया अथां। आ फरमांदे ने दो मारन आए ने, एडी जी घुग्गी जिन्होंने दो मारन आए ने, दो ही मर गए, घुग्गी उत्थे ही खलोती, मौत नूं मौत आ गई। फिर लिखदे की ने, घुग्गी रही अथां खलोती, चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद मर्जी रब दी होई। हाय